السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی اور دیگر حکام نے وزیراعظم شہباز شریف کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء احسن اقبال، محسن نقوی اور جام کمال بھی وزیراعظم کے ہمراہ کوئٹہ پہنچے ہیں۔ وزیراعظم آج کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں آرمی چیف اور وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی ان کے ہمراہ شریک ہوں گے۔ اسلام آباد، پشاور، لاہور سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پاکستان کے وسطی اور شمالی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے جھٹکے اسلام آباد، لاہور، ملتان اور سرگودا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں محسوس کیے گئے۔ اس کے علاوہ چکوال اور گردونواں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اسلام آباد میں قومی ایئر لائنز پی آئی اے نے دوران پرواز موبائل فوٹوگرافی اور ویڈیوز بنانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی آئی اے کی جانب سے پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ابتدائی آغاز بھی کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پرواز کے دوران دیگر مسافروں، کسی واقعے اور کوئی ایسی ویڈیو تصاویر جو ہر انسانی اور غیر اخلاقی حدود کے زمرے میں آتی ہو، اس عمل کو کیمرے میں محفوظ کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکے گی۔ مظفر گڑھ میں بارش کا سلسلہ 24 گھنٹوں سے جاری ہے۔ شدید بارش کی وجہ سے مظفر گڑھ تلیری بائی پاس محلہ روشن آباد میں دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے غریب شہری نے حکومت پنجاب سے مدد کی اپیل کر دی۔ گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں پنجاب یونیورسٹی کے تعاون سے گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس اور العلیم میڈیکل کالج کے زیر اہتمام بائیو انفارمیٹکس ٹولز پر تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں عزوہ سلیم کی رپورٹ میں۔ ورکشاپ کا افتتاح پروفیسر حامد حسن، پرنسپل علی میڈیکل کالج اور ایم ایس گلاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال نے کیا۔ ورکشاپ کا مقصد شرکاء کو جینیٹک، میڈیسن، فارماکولوجی، زراعت، لائف سٹاک کے شعبے میں استعمال ہونے والی تکنیک سے تربیت دلانا تھا۔ ورکشاپ میں لاہور کی مختلف معروف یونیورسٹیز سے بڑی تعداد میں شرکاء نے شرکت کی۔ ورکشاپ میں شامل ہونے والی یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، دی یونیورسٹی آف لاہور، لاہور گیریزن یونیورسٹی اور ایئر یونیورسٹی شامل تھیں۔ پرنسپل علی میڈیکل کالج پروفیسر حامد حسن نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد علی ہاشمی نے کہا، ورکشاپ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی ادویات یا ویکسین کی دریافت کے لیے مختلف بیماریوں کی بہتر تشخیص، خاص طور پر صحت کے نظام میں جدید آلات کو شامل کیا جائے۔ ورکشاپ کے اختتام پر ڈاکٹر عابد علی ہاشمی نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کامیاب ورکشاپ کا انعقاد علی میڈیکل کالج اور گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ گجرانوالہ میں اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن حکومت پنجاب کا اہم اقدام ہے۔ پنجاب اربن لینڈ سسٹمز انہانسمنٹ پروگرام ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے اراضی ریکارڈز کا مربوط نظام تشکیل دیا جا رہا ہے۔ اس نظام کے ذریعے اراضی کے معاملات میں سہولت اور آسان رسائی ممکن ہوگی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں پنجاب بھر میں اراضی ریکارڈ کے نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور اور پاکستان سکھ گرودوارے پربندک کمیٹی کے پردھان سردار مویز سنگھ نے ایڈیشنل سیکریٹری ای ٹی وی پی سیف اللہ کھوکر کے ہمراہ تحصیل بھائی میٹو شہر کا دورہ کیا اور علاقے میں واقع قدیمی گرودوارے کی بحالی کے کام کا باضابطہ آغاز کر دیا۔ اس موقع پر سردار رمیش سنگھ نے کہا کہ حکومت اور پاکستان سکھ گرودوارہ پربندک کمیٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ ملک بھر کے تمام قدیمی گرودواروں کو دوبارہ سکھ قوم کے لیے کھولا جائے اور ان پر ناجائز قبضہ ختم کروایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گرودوارے سکھوں کی تاریخ اور وراثت کا اہم حصہ ہیں۔ لیسکو میں بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے پیش نظر 132 kV سوئی گیس گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ سوئی گریڈ اسٹیشن میں 2 نئے پاور ٹرانسفارمرز بھی لگائے گئے ہیں۔ گریڈ اسٹیشن کے بننے کے باعث نہ صرف دوسرے گریڈ اسٹیشن کا زائد لوڈ تقسیم ہوگا بلکہ وولٹیج بھی بہتر ہوں گے۔ ماناوالا میں کمشنر لاہور زید بن مقصود کا مریم آباد کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران ماتھ، اے ڈی سی جی، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر ضلعی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ کمشنر لاہور نے مریم آباد میں مسیحی زائرین کے لیے شیڈز کی تعمیر اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے محکمہ ہائی وے اور بلڈنگز کے جاری ترقیاتی منصوبہ جات پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر لاہور نے 6 سے 8 سپتمبر تک زیارت مریم آباد کے لیے بہترین اور فول پروف انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔
किला दीदार सिंह में मारूफ गुलकारा टिक टॉकर समीना परिजात की गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, टिक टॉकर कातिलाना हमले में महफूज रही। मुकदमा दर्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरबाब इख्तियार से मुलजिमान की गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिंगर समीना परिजात। मैं अरसा दराज से सिंगिंग कर रही हूँ और टिक टॉकर हूँ। मैं 21 तारीख को तकरीबन 7 बजे अपने रहायशी घर से जो है अपने आबाई घर बताला झंडा सिंह की तरफ जा रही थी। रस्ते में कोट शाह मोहम्मद के करीब मुझ पर कातलाना हमला किया गया है और शदीद किस्म की फायरिंग की गई है। अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा, अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जान बच गई। मुझे तकरीबन 2-3 मंथ से जो है पहले ये काफ़ी ज़्यादा धमकियां आ रही थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, ये समझ के कि शायद कोई फ़ैन है या फिर मुझे वैसे ही धमकाया जा रहा है। लेकिन इस कातलाना हमले के बाद मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और कोई जानलेवा मुझ पर हमले कर रहा है। तो मेरी आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरे कातलों को मेरे सामने लाया जाए और मुझे महफूज किया जाए। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह। पतोकी में अदालती पेशी से वापस आते हुए मुखालिफिन ने फायरिंग करके 2 अफराद को मौका पर कत्ल कर दिया, जबकि तीसरा शदीद ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किला दीदार सिंह में भी ताजिरों ने हुकूमती इकदामात और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की मुकम्मल हिमायत की थी, जिसके पेश नज़र ताजिरों ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुकूमती इकदामात के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहला तो इस हड़ताल का मकसद है कि जी ताजर 2 स्कीम के नाँ से ताजर का मुआशी कतलेआम हो रहा ना, इनू बंद किया जाए। ਜਿਹੜੀ हुकूमत है इनू होश दे ना ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ कि ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ नहीं चलेगा। अगर ताजर हड़ताल ਤੇ चले गए तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर कोई बंदा भी काम नहीं कर सकेगा। इन्हों रिलीफ दिता जाए तो तुहाडी मेहरबानी है कि ताजਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ सलूक ना किया जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बस तमाम ताजर बरदरी हम एक पेज में इकट्ठे हैं और हमारी एक कार में पूरा किला दीदार सिंह बंद हो गया है और हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती और मुसलसल ताजर बरदरी के साथ जो हो रहा है और जो पाकिस्तानी अवाम ज़लील व ख्वार हो गई है, इसके लिए हम एक ही बात रखते हैं कि ये निज़ाम बदला जाए। ये दजाली निज़ाम है, ये जुल्म का निज़ाम है, इसको बदला जाए और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए और ताजर बरदरी को भी रिलीफ चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जब भी हमें कॉल चलेगी हम हड़ताल करेंगे और एहतजाज के लिए बाहर आएंगे। जब तक ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह बाहर आते रहेंगे। शेखुपुरा में थाना सदर फारूकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 10 किलोग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई। DPO बिलाल जफर ने कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन की बड़ी तादाद डी चौक की जानिब रवां दवा, धरना हैरान कुन मनाजिर पेश करने लगा। मिंशनाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बारिशों से भारी नुकसानात हुए। नवाही चक बेला सिंह में भी बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद मौका पर जाँ बहक होने की इतला मिली है। जेलम में चोरी की दलेराना वारदात, मांगने वाली 3 लड़कियां शहरी के घर में मांगने के बहाने नीचे वाले पोर्शन में घुस गईं। जब देखा कि सब लोग ऊपर वाले पोर्शन में हैं तो कमरे में घुसकर अलमारी से 20 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गईं। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुजरिमों की तलाश शुरू कर दी गई। कसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसके नतीजे में खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। 3 मिलियन से जायद मालियात का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। डकैत गैंग के सरगना ने अपने साथियों पर मुश्तमिल एक बैनुल इज़लाई डकैत गैंग तश्कील दे रखा था। मुलजिमान डकैती राजनी के साथ गाड़ी छीनने की वारदातें भी करते थे। मुलजिमान रेंट पर गाड़ी हासिल करते और रास्ते में ड्राइवर से गाड़ी और नकदी रकम छीन कर फरार हो जाते थे। शहरियों ने लूटी गई रकम वापस मिलने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए खराज तहसीन पेश किया। कसूर में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खान के ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतलका अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले 9 मेडिकल स्टोर्स और क्लिनिक्स के केसों की समाअत हुई। तमाम केसों का तफसीली जायजा लेकर एक क्लिनिक का केस मजीद कार्रवाई के लिए ड्रग कोर्ट भेजे गए, जबकि 5 को वार्निंग दी गई और 3 केसेस को दोबारा विजिट करके रिपोर्ट पेश करने का फैसला किया गया।
डिप्टी कमिश्नर कसूर कैप्टन रिटायर्ड औरंगजेब हैदर खां का गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट राधा किशन का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल दौरे के दौरान असातिज़ा और अमले की हाज़िरी, सफाई सुथराई और तदरीस के अमल को चेक किया। उन्होंने मुख्तलिफ क्लास रूम्स में जाकर तलबा से सवालात किए और क्वालिटी एजुकेशन को भी चेक किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा का ट्रैफिक दफ्तर जेलम में खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी में शहरियों की दरख्वास्तों पर समाअत की गई और मसाइल सुने गए। DPO जेलम ने मुतलका अफसरान को साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में पेश होने वाले शहरियों की दरख्वास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइम लाइन पर दरख्वास्तों पर मुतलका अफसरान से फॉलो अप भी लिया जाता है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सजावल और बदीन के दौरे के दौरान कहा कि ख़ास तौर पे हमारे जो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा बारिश शुरू हुई और कल से फिर थरपारकर में ठट्टा, सिजावल, उमरकोट, सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद इन ज़िलों में इन ज़िलों में ज़्यादा है ख़तरात। उसके साथ साथ हमारे जो दरिया की दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट है, ख़ास तौर पे जो कीर्थर रेंज के जिसमें कंबर शदाद कोट, जेकबाद, लाड़कानो, दादू और जामशुरो आते हैं और फिर कराची शहर, इन सब में ख़तरा है। और इस सिलसिले में मैं अपनी मीटिंग्स लेता रहा हूँ। मैंने हर ज़िले में मुकर्रर किए हैं अपने काबीना के लोग। यहाँ पे ठट्टा में हाजी अली हसन सरदारी हैं, मेरे साथ भी हैं, इधर वो हैं इंचार्ज। इस वक्त मैं ठट्टा से जावल ब्रिज पे आप देख रहे हैं पानी का बहाव दरिया इंडस जो दरिया सिंध है उसमें भी है। मैं देखता हुआ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हर जगह कराची के अंदर भी मैनेजेबल और अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। आगे बदीन में अभी जा रहा हूँ, सिजावल और बदीन में काफ़ी बारिश हुई है, वहाँ पे कुछ शिकायत हैं, लेकिन इतनी बारिश में ज़रूर पानी आएगा। और जब तक बारिश होती है, इस वक्त भी हम बारिश में ही खड़े, जब तक बारिश होती है तो पानी निकलने में टाइम लगता है। लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे, हमारी काबीना के लोग, हमारी इंतज़ामिया हर जगह लोगों की खिदमत के लिए मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये कि कम से कम तकलीफ हो। बारिशों का सिस्टम बांग्लादेश और भारत से होता हुआ सिंध में पहुंच गया है। गुज़िश्ता दिनों से थरपारकर ज़िले में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला में ज़्यादा ख़तरात हैं। फोकल पर्सन मेन एमरजेंसी वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी सरफराज राजड़ की टंडोवाला यार आमद। डिप्टी कमिश्नर के हमरा ज़िला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ अहम इजलास हुआ। इजलास में इरिगेशन, हाईवे, रेवेन्यू, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ समेत दीगर महकमों के इजला अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर सलीमुल्लाह की वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी फोकल पर्सन को प्रोजेक्टर के ज़रिए ज़िला के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई फोकल पर्सन ने महकमा इरिगेशन अमले को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया और कहा कि महकमा लाइफ स्टॉक दही इलाकों में मवेशी में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए इकदाम कराएं। तलहार में मोटरसाइकिल और रिक्शे में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 जाँ बहक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देने के बाद हैदराबाद रेफर कर दिया गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद वरुसा के हवाले कर दी गई। वज़ीर आला सिंध का बदीन में बारिश के दौरान गाड़ी से उतर कर लोगों से मुलाकात की और बदीन में कायद-ए-आज़म सड़क और सिविल हस्पताल पर बरसाती नाले का मुआयना किया। सड़क पर काफ़ी पानी जमा था। उन्होंने DC बदीन को बारिश रुकते ही पानी की निकासी और नाले की सफाई के अहकाम जारी कर दिए। जड्डू में गुज़िश्ता रात से वक्फे से तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। शदीद बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। शहर के मुख्तलिफ कॉलोनियों में इस वक्त 3 से 4 फुट पानी खड़ा है। शहर में अर्बन फ्लड का भी खतरा है। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।